Good morning, students. Welcome to the physics class. Yesterday we discussed about the spherical mirrors and types of spherical mirrors. As we discussed that there are two types of spherical mirrors, which are concave mirror and convex mirror. Now we also done the definitions of these two mirrors, and we cleared the concept of spherical mirror. Now today we will do the important terms related to these spherical mirrors. In this, the first term is center of curvature. What is this? See, students, if we talk about the spherical mirror, then they are the part of, as I told you in the last lecture, that these are the part of a sphere. Suppose this is a sphere, we cut it from here, and then the left, this is the cut part, and the left one is this. Okay, and this will form our spherical mirror. तो आपको जैसे कल भी बताया था मैंने कि स्फेरिकल मिरर जो हैं वो दो तरह के होते हैं. if it is polished from one side and light is coming like this, then it is convex, and if it is bent inward and light is coming like this, and then it is concave. Now as we know that this is the part of a sphere, then suppose this is the this is the concave mirror. Okay, now we know that this is the part of sphere, and if we complete the complete circle, okay, so this is the part of this sphere. We have omitted this because we have omitted this, so the left one part is concave mirror. But if we complete the full circle, then we get a sphere, and this sphere will also have a center. So what will be the center of this sphere? This is the center of this sphere. So if I omit the dotted line, the left one is the concave mirror again, and this is the center. This is its center. So this center is known as center of curvature. This is the center of this sphere, and this is known as center of curvature. Definition: it is the center of sphere of which the mirror is a part. जिस स्फीयर का ये जो हमने मिरर बनाया था, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ वी हैव डिस्कस्ड that this is the mirror, concave mirror, and this is its center. Okay, now this distance, before that we should define the pole also. What is pole? No, we have discussed that this is the center. Okay, now this is our full concave mirror. ठीक है, ये हमारा जो है ये concave mirror है. इसका जो सेंटर होगा, देखो ये जिस स्फीयर से बना है उसका सेंटर तो ये है, ठीक है, लेकिन इस जो आपका मिरर है इसका जो सेंटर है वो ये वाला है. ठीक है, तो इस सेंटर को हम बोलते हैं P. P मीन्स पोल. तो इस तरीके से बेटा अगर अपने डायग्राम देखें तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो बेटा कि ये हमारा है कॉनकेव मिरर. हाँ, वीडियो बना रहा हूँ सर.
तो अब अगर अपने देखें कॉनकेव मिरर में देखेंगे तो ये अपना आ गया सेंटर, ठीक है, और ये अपना आ गया पोल। तो याद रखना है आपने दैट जो स्फीयर का ये वाला सर्कल का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला जो आपका मिरर है, देखो ये वाला मिरर है इतना, ठीक है, इसका जो सेंटर है इसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास आ रही है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? देखो बेटा, नाउ वी हैव डिफाइंड दैट दिस इज द मिरर and it has a pole, this is pole, and it has a center C, okay। now if we join the center and the pole, ठीक है, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ऐसे ज्वाइन करके बनाएंगे, तो इस लाइन का नाम होगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पोल। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास आ रही है वो है फोकस। फोकस क्या होता है वो समझो बेटा। पहले यहाँ पे मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिखा देता हूँ। देखो बेटा इस डायग्राम में अगर देखें तो ये वाली जो एक्स और वाई लाइन है ये किस किस को जोड़ रही है? इट इज़ ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। सो दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दिस डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाला पोल है इसके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रिमेंबर दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है दैट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये क्या होता है? ठीक है, ये समझेंगे इस डायग्राम से। देखो बेटा वी नो दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ मिरर। वर्क ऑफ मिरर इज टू रिफ्लेक्ट द लाइट बैक। नाउ दिस इज आवर इंसिडेंट लाइट। ये जो लाइट आ रही है ये वाली, ये पूरी की पूरी पैरेलल लाइंस जो आ रही हैं, दीज आर दी incident lights. Now after striking the concave mirror, जब ये concave mirror के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, आफ्टर स्ट्राइक दे विल रिफ्लेक्ट बैक, तो सभी क्या हो जाएंगी? बैक को रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस जो है आ जाएंगी। तो बच्चे अब ये वाली लाइंस जो है वो वापस आ रही हैं, ठीक है, कहाँ से टकरा के? आफ्टर स्ट्राइकिंग दी concave mirror। सो वेयर दे मीट, जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में मीट करेंगी उस पॉइंट का नाम हमने रखा हुआ है फोकस। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत आसान है बेटा। तो हाउ विल यू डिफाइन द फोकस? इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। तो जिस पॉइंट के ऊपर सभी पैरेलल रेज जो पैरेलल थी, पहले पैरेलल थी जो आ रही थी, उसके बाद जिस पॉइंट के ऊपर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट के ऊपर वो मिलेंगी जाके, वो क्या होगा? वो हमारा होगा प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। और फोकल लेंथ क्या होती है? देखो ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब लेंथ भी दो तरह की होगी बेटा, एक तो हो गया सेंटर और पोल में जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, and the distance between focus and the pole is focal length. So these are the definitions, important definitions which are related to the spherical mirrors, these 5. So thanks for attending class. Now in next lecture we will discuss the
formation of image. Thanks.